Uh, I think अब स्टार्ट करते हैं. Let's start the paper of 2024, February, March 2024. Now, this one is the first question. A grocer sells potatoes, mushrooms, or carrot. A customer buys 3 kg of mushrooms at 1.05 per kg and 4 kg of carrots at this rate. Find the total cost. So, total cost बड़ा simple है. That 3 into 1.04 plus 4 into 1.28. So it will give us the cost, और इसकी कॉस्ट होगी आपके पास ये डायरेक्टली हम अगर कैलकुलेटर से करें so this will be equals to 8.24. so ये कॉस्ट आपके पास आ रही है. Okay, I think let's start the first question. 2024 का है ये पेपर और this one is the first question और इसमें आप देखें the first one is calculate. So अगर हम इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करें so this will be equals to 8.24. 8.24. Let's move to the next one. In 1 week, the ratio of the masses of vegetables sold by the grocer is this. Work out the mass of mushrooms sold as a percentage of the total mass. So mass इसकी आपके पास 8 है और sum आप इसको अगर करें so 19 into 6, 8, 11 plus 8 plus 6. इसको अगर हम बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज सो इसको हमने मल्टीप्लाई बाय 100 करें सो दिस विल बी 8 बाय 19 into 8 by 25 multiplied by 100. So 8 multiplied by 8 divided by 25 multiplied by 100. So this will be equals to 32%. Let's move to the next one. The total mass of a potato, mushroom and carrot sold is 1500 kg.
The mass of the carrot the grocer sells this week. So 1500 कैरेट है इसका, तो हमारे पास we can see the total mass of potatoes ये है. Find the mass of carrots the grocer sells. So 1500, अब हमने इसकी अगर हम रेशियो देखें कैरेट्स की, सो कैरेट्स की आपके पास है 6, so that is why 6 divided by 25 multiplied by 1500. So this will be equals to 6 multiplied by 1500 divided by 25. So this will be equals to 360. This will be the final answer. Let's move to the next one. The profit of grocer makes selling 1 kg carrot is 0.05. Find the mass of the total profit. अब हमने इसमें क्या देखना है कि we need to find out the total profit. अब total profit के लिए हम क्या कर सकते हैं? So total profit के लिए we can see 1 kg पे जो प्रॉफिट था आपके पास वो 0.75 है. तो अगर हम इसका मैथ देखें तो आपके पास मैथ कितना आ रहा है? मैथ इसका आ रहा है आपके पास, अगर हम जस्ट रीड द क्वेश्चन, फाइंड द टोटल, तो हमें कैरेट की टोटल केजीज पता है, वो है आपके पास 360 मल्टीप्लाई बाय 0.75 multiply by 0.75, it will be equals to 270. Let's move to the next one. Question number 4. Calculate the original price of 1 kg of potatoes. So first of all, what we have to do is we need to find out. We know that on the last day of the week, the grocer produced the price of 1 kg potatoes to 1.15. So we can clearly see that 8% reduce हुई है price. So it means that इसको सॉल्व करने के दो वेज हैं. एक तो ये है कि आप let's say the original price is of 1 kg of potato is x. So x plus 8% reduce हुई है, so we need to subtract it. X minus 0.08 x is equals to what? This will gives us the new price. और इसका एक और सिंपल वे ये हो सकता है कि हम डायरेक्टली जो आपके पास 1.15 है, 1.15 divided by the reduced price. So this will be equals to reduced price आपके पास है 0.92. So इसको अगर हम देखें, so this will be equals to 1.15 divided by 0.92. So it will give us $1.25. Let's move to the next one. नहीं, ये 2024 का पेपर है. ओके, ये 2024 का पेपर है और इसमें जी इधर साथ साथ देख तो रहा हूँ मैं साथ साथ आपकी चैट. और जी आशिर, असल चीज़ ये है कि आप स्क्रीन पे फोकस करें. स्क्रीन पे आप ये जस्ट स्क्रीन आपकी विजिबल होनी चाहिए. स्क्रीन आपकी, आई थिंक सोल्यूशन सबको विजिबल है. Now the next one is the grocer buys 620 kg of onions correct to nearest 20 kg. He packs them into bags, each containing 5 kg of onions correct to nearest 1 kg. Calculate the upper bound of the number of bags of onion that he packs.
So we can see correct to nearest 20 kg. So we need to divide it. So 620 kg divided by 5 kg. But यहाँ पे ये है कि we need to find out the upper bound. So upper bound of the number of bags. So number of bags के लिए number of bags का हमने अपर बाउंड फाइंड करना है. So इसका अपर बाउंड किस तरह फाइंड कर सकते हैं कि 620 का अपर बाउंड एंड 5 का लोअर बाउंड. So this will be equals to 620. अच्छा, correct to nearest 10 kg. सबसे पहली चीज तो ये है. So nearest 10 kg means that अगर हम 620 में 20 divided by 2, so this will be 10. So अगर हम प्लस 10 करेंगे तो अपर बाउंड आ जाएगा और माइनस 10 करेंगे तो लोअर बाउंड आ जाएगा. So this will be 630 because we have to use the upper bound. So ये 630 आ गया and then डिनोमिनेटर में we have to use the lower bound. 5 है आपके पास. So correct to 1 kg, so which means that 1 divided by 2 is 0.5. So ये आपके पास 4.5 आ रहा है. तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें so this will be 630 divided by 4.5. So this will be equals to 140. नहीं, रिकॉर्डेड कॉल नहीं है, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था. अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो इसमें कोई करेक्शन हो, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बताएं. ओके, आई थिंक हाशिर की तैयारी ठीक है. काइनेमेटिक्स की ज़्यादा टेंशन ना लो. काइनेमेटिक्स में आपको हल्का सा, अगर आपको मैं हिंट दूं तो काइनेमेटिक्स में आप ये याद रखो कि अगर आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो आप अगर ग्रेडियंट फाइंड करेंगे तो आप बेसिकली क्या फाइंड कर रहे होते हैं, स्पीड या वेलोसिटी फाइंड कर रहे होते हैं. ठीक है. और अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और इसमें अगर आप ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, इट मींस ग्रेडियंट अगर फाइंड करेंगे इट मींस आप एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं. ठीक है. और अगर आप एरिया फाइंड करेंगे इसमें, सो एरिया मींस कि आप इसमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हैं. सो बेसिकली जो इसका इसका फ्लो होगा वो इस तरह से, अगर आप जा रहे हैं डिस्टेंस से ग्रेडियंट फाइंड करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, वेलोसिटी टाइम से ग्रेडियंट फाइंड करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, और वेलोसिटी टाइम से अगर आप एरिया फाइंड करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा. हैदर, प्रिडिक्टेड टॉपिक्स तो एक मेरा हमेशा से यही है इस दफ़ा के लिए. वो है आपके पास डिफ्रेंसिएशन का. वो मेरा प्रिडिक्टेड टॉपिक है इस दफ़ा का कि डिफ्रेंसिएशन से क्वेश्चंस मस्ट आएंगे. और उसके साथ साथ जो फर्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मली अगर आपने भी ये ऑब्जर्व किया होगा, फर्स्ट क्वेश्चंस इसी तरह के होते हैं कि आप टाइम, करेंसी चेंज के आपके क्वेश्चन होते हैं, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, और ये आप बेसिक जो एवरीडे मैथ्स होती है उससे क्वेश्चंस होते हैं. टॉपिक्स तो हाशिर सारे ही आएंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मुझे डिफ्रेंसिएशन लग रहा है. ओके, उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री भी ज़ाहिर है इम्पोर्टेंट है. ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन मस्ट एक्सपेक्टेड है कि वो आएंगे. ओके, एक्सप्लेन व्हाई x इज इक्वल्स टू y. गिव अ ज्योमेट्रिकल रीजन फॉर ईच स्टेटमेंट यू मेड. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू
180 माइनस वाई। अब हमें और इसकी ज्योमेट्रिकल रीजन क्या है आपके पास, सम of angles of a straight line will be equals to 180 degrees, and then the second reason हम क्या दे सकते हैं, that इन दोनों का सम x और इसका सम जो है वो आपके पास 180 डिग्रीज होगा। तो इसका मतलब है x प्लस 180 माइनस वाई शुड बी इक्वल्स टू 180, और हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। सो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस वाई माइनस प्लस वाई माइनस 180। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू वाई। उसके बाद सेकेंड है, शो दैट ट्रायंगल ए बी एक्स इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी एक्स। ए बी एक्स इज सिमिलर टू ए डी एक्स। सो अगर हम ऑब्जर्व करें तो आपके पास ये ट्रायंगल दो हैं, इसमें से एक एंगल तो ऑलरेडी हम प्रिडिक्ट कर चुके हैं कि आपके पास इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर, let me write it over here, that angle XAB is equals to angle XCD, एक चीज। दूसरा ये है आपके पास एंगल AXB is equals to angle DXC, बिकॉज ये कॉमन एंगल है दोनों का, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है। और थर्ड तो ऑफ कोर्स सेम ही होगा बिकॉज उसका सम जो है 180 डिग्रीज के इक्वल होता है। देन थर्ड पे आ जाए, AD is 15 सेंटीमीटर, DX is 9। AD is 15, AD is 15 and DX is 9। CX is 12, CX is 12। अच्छा, ये भी हमें कंफर्म हो गया कि ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। ओके, देन इसमें आपके पास फाइंड बी सी। सो हमने ये लेंथ फाइंड करनी है। सो एज वी नो कि आपके पास दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। सो सिमिलर ट्राइंगल्स की वजह से इट मीन्स कि इनकी रेशो क्या होगी, इनकी रेशो आपके पास सेम होगी। सो हम इनकी रेशो को सेम, सबसे पहले तो हम इसकी रेशो फाइंड कर सकते हैं कि ट्राइंगल ए एक्स बी और ट्राइंगल डी एक्स सी, इन दोनों ट्राइंगल्स की जरा रेशो को हम देख रहे हैं कि रेशो क्या होगी। तो हमें पता है कि ए एक्स की लेंथ और डी एक्स की लेंथ की रेशो, वहां से हम बाकी सारी निकाल सकते हैं। तो टोटल लेंथ आपके पास क्या आ रही है, अगर हम देखें तो ए एक्स की लेंथ डिवाइडेड बाय डी एक्स की लेंथ, दिस विल बी इक्वल्स टू 24/9। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, सो दिस विल बी 8/3। तो इसकी रेशो हमारे पास ये आ रही है 8/3। ओके, अब हमने फाइंड क्या करना है, इसमें हमें फाइंड करना है साइड, द थर्ड साइड बी सी। तो हम रेशो को यूज करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली अगर देखें तो बी एक्स बाय सी एक्स की रेशो क्या होगी, बी एक्स बाय सी एक्स की रेशो विल बी, इट शुड बी 8/3, बिकॉज ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो इसलिए इनकी रेशो भी क्या होगी, इनकी रेशो भी सेम होगी। यासीन, आई थिंक कल आपका भी पेपर है और तैयारी कुछ ज्यादा ही है आपकी। अब्दुल्ला 190 प्लस ए स्टार।
ओके, सो 8/3 है। अब सी एक्स की लेंथ हमारे पास पता है, सी एक्स की लेंथ क्या थी आपके पास, सी एक्स की लेंथ है आपके पास 12। सो ये आपके पास है 12। सो हमने फाइंड क्या करना है, हमने बी सी फाइंड करना है। सो सबसे पहले तो हम बी एक्स ईजिली यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो बी एक्स विल बी इक्वल्स टू 8/3 मल्टीप्लाई बाय 12, 3 1 जा 3 4 जा। सो ये 20 ओवरऑल लेंथ अगर 24 है तो आप इजीली थर्ड लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। सो अच्छा, एक चीज़ और इसमें ये है कि हमने कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का ख्याल रखना है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का ये है कि हमें ये पता है कि इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, अगर हम देखें दोनों ट्राइंगल्स को, और हमने प्रीवियसली ये प्रूव किया है कि ए बी एक्स इज सिमिलर टू सी डी एक्स, ए बी एक्स इज सिमिलर टू सी डी एक्स। तो आप ये जो आपके पास पैटर्न है, यहाँ यहीं से ही आप बता सकते हैं कि कौन सी साइड्स किसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें तो ए बी की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सी डी होगी, और अगर बी एक्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आपके पास डी टू एक्स होगी। तो ये हम दो साइड्स को कंपेयर कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप कंपेयर करें, सो दिस विल बी 24/12, बिकॉज इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये इज इक्वल्स टू बी सी बाय x by, let's say this side is, this whole side is x, so x by x by 9. So इसको सिंप्लीफाई करें, सो दिस विल बी x इज इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, 12 1 जा 12 2 जा, सो x इज इक्वल्स टू 18। और 18 माइनस 12 करें आप तो इजीली आपके पास ये साइड आपके पास 6 आ रही है। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल खालिक। जो को अब रहने दें। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, कंप्लीट द स्टेटमेंट। अब एरिया हमने फाइंड करना है किसका, ए बी एक्स और सी डी एक्स का। तो हम डायरेक्टली लेंथ्स को कंपेयर कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ए बी एक्स, सो 24 और 18, तो इसकी लेंथ को अगर हम कंपेयर करें तो बेसिकली आपके पास सर्कल सर्कल थ्योरम, सर्कल थ्योरम के अंदर आपने बस प्रोसेस फॉलो करते रहना है, आपके आंसर्स ऑटोमेटिकली ठीक आएंगे। जी अब्दुल्ला बोले। ओके, सो इसकी हम इसके लिए आपके पास हिंट यही है कि आप एरिया का बेसिक फार्मूला यूज करेंगे इनटू साइन ऑफ दिस, और उसके बाद हम डिवाइड करें दोनों को तो हमारे पास इजीली इसकी रेशो आ जाएगी। अच्छा, इसमें मोस्टली जो क्वेश्चंस मोस्टली आप कहते हैं वो है जो जिसके आप पूछ भी रहे थे प्रिडिक्शन के बारे में, वो है आपके पास टॉपिक डिफ्रेंसिएशन का। तो डिफ्रेंसिएशन के टॉपिक को ज़रा देख लेते हैं और फिर आई थिंक वाइंड अप करते हैं, बिकॉज मोस्टली इसके बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्री मेंसुरेशन, वो मोस्टली को आपको आप में से क्लियर है, सिवाय आई थिंक हाशिर को अभी तक क्लियर नहीं है। स्केच दी ग्राफ, चांसेस हैं हैदर, इसकी प्रोबेबिलिटी है
जैसे ये देखो, ये फरवरी मार्च ये 2024 का ही पेपर है। स्केच दी ग्राफ में हैदर एक चीज हमेशा सबने याद रखनी है कि आपने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट जरूर शो करने। जैसे अगर आप ये देखो तो x इज इक्वल्स टू 0 पुट करो तो y 4 आ रहा है, एंड देन x y इज इक्वल्स टू अगर 0 पुट करो तो 4 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 0, विच मीन्स 4 इज इक्वल्स टू 3x, एंड देन x विल बी इक्वल्स टू 4/3। सो आपने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट जरूर मेंशन करने हैं, ठीक है। ये इसका रूल होता है स्केच में, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, अदरवाइज आपको ये 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो एक बात तो आपको इसमें भी ये याद रखनी है स्केच में कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ax² + bx + c हो, तो जो ये फर्स्ट एलिमेंट है आपके पास, जो x² का कोफिशिएंट है, अगर ये a अगर पॉजिटिव होगा, अगर ये a पॉजिटिव होगा तो आपका ग्राफ इस तरह से बनेगा, और अगर ये a नेगेटिव होगा तो आपका ये ग्राफ इस तरह से बनेगा, इन्वर्टेड यू बनेगा। यहाँ पे भी देखें, और अगर आपको ये बात भूल भी जाए तो आप रैंडमली इसमें कुछ पॉइंट्स पुट करके भी इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, y 0 आएगा, x की वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे तो आपका ये ग्राफ कुछ इस तरह से ही बनेगा। ओके, क्यूबिक सीक्वेंस। अच्छा, चले पहले क्यूबिक सीक्वेंस को देख लेते हैं, बल्कि पहले डिफरेंशिएशन को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद क्यूबिक सीक्वेंस का भी एक क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन जो है वो कंफर्म आने वाले टॉपिक्स में से एक है। डिफरेंशिएशन हो गई, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, ये कंफर्म आने वाले टॉपिक्स में से। बिल्कुल M1 की तैयारी हो सकती है, थोड़ा सा लेट है लेकिन M1 की तैयारी हो सकती है। बिल्कुल, क्यूबिक ग्राफ में 3 इंटरसेप्ट होते हैं। ठीक है, बस ये डिफरेंशिएशन कंप्लीट करते हैं। देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स। अब टर्निंग पॉइंट्स में, इसमें हमारे पास डिफरेंशिएशन के अंदर एक ही चीज है कि जैसे अगर हम स्ट्रेट लाइन ग्रेडियंट के अंदर भी ये करते थे, लेट मी राइट इट ओवर हियर, दैट हमें ये पता है कि dy/dx बेसिकली आपके पास ग्रेडियंट होता है, ठीक है। अब ग्रेडियंट आपने, अगर जैसे अगर हम स्ट्रेट लाइन में करते थे कि अगर ग्रेडियंट अपवर्ड है तो इट मींस कि आपका इंक्रीजिंग अगर इंक्रीजिंग लाइन है तो ग्रेडियंट पॉजिटिव, डिक्रीजिंग लाइन है तो ग्रेडियंट नेगेटिव, और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ग्रेडियंट 0 होगा। यही काम हम कर्व के लिए भी करते हैं। लाइक अगर कर्व में dy/dx ग्रेटर देन 0 हो, इसका मतलब है इंक्रीजिंग फंक्शन है। प्लीज इसको मैक्सिमम और मिनिमम के साथ मिक्सअप नहीं करना आपने। और अगर आपके पास ग्रेडियंट लेस देन 0 हो तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो इसको आपने मैक्सिमम मिनिमम के साथ मिक्सअप नहीं करना। तो यहाँ पे देखें, जैसे सेकंड क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम का ही है, ये अच्छी बात है, चलें इसको देख लेते हैं। अब देखें, टर्निंग पॉइंट का मतलब ये हुआ कि टर्निंग पॉइंट पे, जैसे मैंने ये कहा ना, ये टर्निंग पॉइंट आपके पास ये स्टेशनरी पॉइंट होता है, स्टेशनरी पॉइंट हो या टर्निंग पॉइंट हो, यहाँ पे आपका ग्रेडियंट जो है वो 0 होगा, dy/dx विल बी इक्वल्स टू 0। अब हम इसको अगर देखें तो सबसे पहले तो वी हैव टू फाइंड आउट dy/dx। तो अगर हम dy/dx फाइंड करें तो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होगा, एंड देन 18x माइनस 6x²। अब हमने टर्निंग पॉइंट फाइंड करना है, और टर्निंग पॉइंट पे हमें पता है कि dy/dx विल बी इक्वल्स टू 0। तो हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं? सिंपली इसको 0 रखें, सो 18x माइनस 6x² और 6x² इज इक्वल्स टू 18x, या यहाँ से हम कॉमन भी ले सकते हैं।
हम डायरेक्टली कॉमन लेते हैं, सो 6x अगर हम कॉमन लें तो 3 माइनस x, तो यहाँ से 6x विल बी इक्वल टू 0, x विल बी इक्वल टू 0, और 3 माइनस x इज इक्वल टू 0, विच मीन्स x इज इक्वल टू 3. सो x की दो वैल्यूज आ गई, 0 एंड 3. तो y हम पुट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं इजीली. 10 प्लस 9 इंटू 0 स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 0 क्यूब. सो हाशिर ये बताओ कि इसका आंसर क्या होगा. हाशिर ये आपका वेट कर रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा जो हमने x की वैल्यू 0 पुट की है. मेंसुरेशन तो सलमान का फेवरेट टॉपिक है. मेंसुरेशन आएगा इंशाल्लाह, मेंसुरेशन भी है, और डिफरेंशिएशन जो कंफर्म टॉपिक है उसमें भी ये गड़बड़ कर रहा होता है. साइन ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3. चले हाशिर को गायब नहीं करते और खुद ही देखें, इसका आंसर डायरेक्ट 10 आएगा. जब 0 पुट किया तो 10 आ गया. अब 3 अगर पुट करें तो क्या होगा. y is equals to 10 plus 9 into 3 square minus 2 into 3 क्यूब. तो y is equals to, अभी आपके पास क्या होगा, ये आपके पास होगा 3 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 10 माइनस 2 इंटू 3 क्यूब. सो इसका आंसर आपके पास आ रहा है 37. अब इस वक्त हम जो इंटरेस्टेड हैं वो इस चीज में है कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम. फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास है dy बाय dx इज 18x माइनस 6x स्क्वायर. क्या आएगा, यहाँ से ही आपके पास आएगा सेकेंड डेरिवेटिव अगर हम इसका लें तो 18 माइनस 12x होगा. अब अगर हम इसके अंदर इक्वेशन को पुट करें, इसके अंदर अगर हम इक्वेशन को पुट करें तो क्या होगा. इसके अंदर अगर हम इक्वेशन को पुट करें तो क्या होगा. ये होगा आपके पास ये यासीन को ही पता होगा, और ये जब यासीन का रिजल्ट आएगा उस वक्त पता चल जाएगा. ठीक हो गया. चलें, अब इसमें हमने 1 बाय 1 0 करें. लाइक हमने फर्स्ट पॉइंट ये मैक्सिमम पॉइंट होगा. नहीं आशिर, मैंने आपका आंसर देखा है, लेकिन जितनी देर में आपने आंसर दिए है उससे बेहतर था कि हम उतनी देर में हमने नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लिए. थैंक यू अब्दुल खालिक, ये बड़ी ज़रूरी बात अब्दुल खालिक ने की है, सारे इसको फॉलो करो. ओके. अच्छा, ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक को भी आपने देखना है. ठीक है, इसमें आपने ये याद रखना है कि इसके फॉर्मूलों को आपने देखना है कि उसमें आपके पास कोई मिस्टेक किसी तरह की ना हो. वेक्टर्स को हमने बड़ी डिटेल में पहले भी किया हुआ है, वेक्टर्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. जी, इसमें कोई फिक्स फैक्टर के आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है.
ऐसा कोई फिक्स रूल होता नहीं है। एंड ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था फरवरी मार्च में, इसमें भी आई थिंक ये लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन, ये भी कंफर्म टॉपिक है। अच्छा, एक चीज और ही छोटी सी है, लेकिन इसको जरा देखें, क्योंकि मोस्टली इसमें ये मिस्टेक कर रहे होते हैं। अगर आपके पास साइमल्टेनियसली सॉल्व करना आ जाए तो इसको देख के परेशान नहीं होना आपने। या तो आप इसमें ये करें, इसके दो वेज हैं, आप इसमें एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि आप इसके अंदर एलिमिनेशन भी यूज कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर सकते हैं। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से यूजुअली हम करते रहे कि x इज इक्वल टू 13 प्लस 3y, तो इसको हम फर्स्ट में इसमें सेकंड में पुट कर दें और सिंप्लीफाई कर दें। अब एलिमिनेशन क्या यूज कर सकते हैं ये जरा देखते हैं। तो एलिमिनेशन के लिए हमने सिर्फ ये देखना है कि इफ यू मल्टीप्लाइड विथ 3, सो ये सेम हो जाएंगे आपके पास। तो ये आपके पास क्या बनेगा, फर्स्ट इक्वेशन विल बी 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 13 इंटू 3। अब्दुल खालिक मुझे लगता है आज क्यूबिक सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट गलत करके आया होगा। अच्छा, ये भी पेपर 2, सो दिस विल बी 39, और उसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको आप फर्दर कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2x स्क्वेयर माइनस 9y इज इक्वल टू 116। अब्दुल खालिक वो पेपर कल डिस्कस करेंगे, आपका जो आज आपका पेपर आया था वो कल डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे देखें तो साइंस चेंज है, तो हमने इसको, इनके साइंस को चेंज करना है। ये कैंसिल हो गया, एंड देन दिस विल बी माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 3x इज इक्वल्स टू 116 प्लस 39। तो ये -77 आ रहा है, -77, और इसको हम लिख सकते हैं आई थिंक स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है आपके साथ। ओके, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये दिस विल बी -2x स्क्वेयर प्लस 3x इज इक्वल्स टू -77। मैं इसको दोबारा स्क्रीन आपके साथ शेयर कर दूं। ओके, आई थिंक अब स्क्रीन विजिबल है। ओके, लेट्स सी कि यहाँ से आप इसको रीअरेंज कर सकते थे। सो -2x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 77 इज इक्वल टू 0। सो 2x स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 77 वे से ओपन करना है। और इसको, इसमें एक चीज़ ये याद रखें कि अगर आपके पास एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई में तीन एक्सप्रेशन हो, तो आपने 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना है। पहले आपने फर्स्ट टू को करना है और जो आंसर है उसको थर्ड से करना है। अब्दुल खालिक के अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। इसलिए कल पेपर के बाद मिलते हैं अब्दुल्ला। यासीन, अब आप बस दुआएं ही करें, और बाकी जो है अल्लाह आप सबको कामयाब करे।
ठीक है, चलें फिर, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अगर किसी का कोई क्वेश्चन इस पेपर में है और इस पेपर को ज़रूर कीजिएगा। और बात वही है कि डिफ्रेंसिएशन में बार बार ये बात कर रहा हूँ कि डिफ्रेंसिएशन आएगी, उसके कॉन्सेप्ट्स को एक दफ़ा देख लें, कोई उसमें मुश्किल बिल्कुल